Yeah, good morning, everyone. So, in last Good few morning. classes, I was discussing about the linear inequalities. Okay, so today I have changed the way I am presenting my screen because I am going to use the graphical software as well as for the demonstration purpose. So everyone please check it out. We started with the graphical solution of linear inequalities in two variables. So please quick check that we have, this is exercise 6.2. Yeah. So you can check this out. 3x plus 4y less than or equal to 12. We already have learned the method. So draw the line. We already have seen 3x plus 4y equal to 12. And then checkpoint. So then we have to use the checkpoint method. So there is a checkpoint. Generally we take at 0, 0. Any point which do not lie on this line. Substitute that point in the inequality. If it is true, if it is true means the shading will be in the direction of that point only. So that way we shade it like this. Actually today I'm not carrying my stylus pen, so I'm using the mouse only for this. Similarly, 2x plus y greater than equal to 6. Check this out, quick check. When I put 0, 0 in the inequality, it comes out to be false. So false means this is not in my solution. Origin is not lying in my solution. So therefore the shading will be in the direction opposite to this. So that way we have the shading. So you can check out, we already have discussed all these questions in our last class only. Also remember, if the line itself, observe this line, if the line itself passes through 0, 0, तो ये line 0, 0 से पहले से pass कर रही है, तो I cannot use checkpoint as 0, 0. तो मैंने 2, 0 ले लिया था, आप 3, 5 ले लो, 10, 7 ले लो, वट एवर इज योर चॉइस, राइट. बट ठीक है, कन्वीनियंट पॉइंट मैंने ले लिया 2, 0, वो अब आप पुट कर लीजिए और फिर फॉल्स आ गया तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग इस तरह से आ जाएगा. Even if now there is a system of linear inequalities, two different linear inequalities are given to you and we are looking for their common solution. So common solution, better visualization, draw these two lines, imagine just in your mind where the shading will go and highlight the final shading only. There is no need to make the graph paper messy like this. You just need to keep it in your mind what region is going to be your final shaded region. So just show that. So here, because of this purple and this yellow color combination, you can check it out, this red color is formed, right? So this red shaded region will be your required shaded region. Followed by the homework type questions. ये आपके questions मैंने homework में कहे थे करने के लिए. So I don't know how many of you have attempted. Anyone did these questions? May I know? Anyone? And do practice on the graph paper only. Okay, so check this out. Now let me take next question. So this is probably a simple question. Solve the following system of linear inequalities graphically. Right. So graphically, what is required? Accordingly, what I am going to do? Let me just erase all these things and use the software to graph this. So please check this out, everyone. We have the first equation given as 5x plus 4y less than or equal to 40. So
5x plus 4y less than or equal to 40. Check this out. So this is the graph of this first linear inequation in two variable 5x plus 4y less than or equal to 20. Give me a second. ओके सॉरी सो फर्स्ट लाइन आप चेक कर लीजिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया है 5x plus 4y less than or equal to 40 and the graph is the software is already shading the region. So this is the line 5x plus 4y equal to 20 and of course origin satisfy this, so shading will be coming to the left hand side. Fine. Next inequality is yeah, x greater than or equal to 2. So let me graph x greater than or equal to 2 at the same time. So this is being graphed, but since it is using the same color, to let me try to change the color. So I go to the color option, say I have chosen the different color just to have the basic idea. So this is the second line which is being drawn. So I hope the idea is clear. So I'm just zooming in the graph for our better visualization. And the third inequality is actually if y is greater than or equal to 3. Okay, so y is greater than or equal to 3 and graph it. So when I graph this again, I may be required to change the color. So let me choose green color. Okay. Now, this is also being graphed. So what is the final common shaded region you visualize? Anyone? Where is that region? All three inequalities must be satisfied. When I keeping my No cursor over, solution. yes, So no this solution. shading, no solution. Okay, check कर लेते हैं. ये this is showing only inequality C. When I hover my mouse here, you can check this out. So B and C, no. A, B, A and B only. A and B ये क्या लिखा हुआ है? ये देखो यहाँ inequality को नाम कर दिया है सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली. A, B and inequality C. तो ये जो शेडेड है ये A एंड C का सॉल्यूशन है. ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ आ जाता है. ये सिर्फ इनइक्वालिटी A है, A एंड B है, B है, B एंड C है एंड C है. सो ऑफ कोर्स दिस हैज गॉट नो सॉल्यूशन. कहीं पर भी कॉमन अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आया है तो नो सॉल्यूशन इसका हो गया हमारे पास. Okay, this is easy problem. Everyone please check this out, this question. ये मैं ग्राफ बाद में बनाऊंगा. पहले आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. Yes, please check out this question. I'm waiting for few minutes, maybe say 2-3 minutes, and please graph this. And at the same time, before I forget, mark your attendance in the chat box.
सो इनइक्वालिटीज आपके सामने हैं. x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8. सेकेंड है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 8. एंड थर्ड एंड फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखें और समझें, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, क्लियरली इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. सो अब जो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, और स्पेसिफिकली अगर मैं 12th क्लास से रिलेट करूं, our solution is generally lying in the first quadrant only. So always if the condition is given like this on the graph paper also, please give the maximum space to first quadrant only, because in advance I am already aware that my solution is going to be lie in the first quadrant, so that maximum spacing for the first quadrant. So x plus 2y less than or equal to 8. So everyone please check out the shading. ऐसा ही आ रहा है, आना चाहिए आपका. So since, चलिए अभी आप इतना देखिए पहले, और शेडिंग ये क्लियर होना चाहिए. नीचे वाला आ रहा है. नेक्स्ट है 2x प्लस y is less than or equal to 8. Again, since is showing the same color, तो मैं quickly color change कर दिया है. And by the way, I am using a software referred to as the GeoGebra. Anyone heard about this name in the latest news yesterday? Maybe 2 days back? Anyone heard something important? A news related to GeoGebra? Yes. Okay, no one. Acha, heard about Byju's? Byju's. So Byju's has acquired this free open source software in mathematics. Earlier, this software I'm using, millions of mathematics teachers around the globe, they are using this open source free software. And 2 days back only, Byju's has acquired this for $100 million. So of course, if someone is spending this kind of a huge amount to buy something which was available free, God knows, maybe in near future they are going to charge for it. As of now, they have committed that it will be free always, but probably they may always start having the plans for the same, and it will not be no longer free. Anyway, so this is a very famous software. Most of the teachers use this, and you can always download this the way I am demonstrating on your laptop, and there's a mobile app also. You can always check out this software, just GeoGebra. So please try out by your own end. So these are the two inequalities. अभी तक में कॉमन देखो कौन सा शेडिंग दिखाई दे रहा है इन दोनों में से? एनीवन? The purple one. द पर्पल वन आ रहा है. क्लियर हो ना? ये इसके होवर कर रहा हूं तो ए एंड बी एक साथ दिखा रहा है. ये सिर्फ ए है, ऊपर सिर्फ बी है. तो पर्पल वन जो बन गया एक तरह से, अभी वो इन दोनों से है. बट अब क्वेश्चन में साथ में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी है. तो अब मैं जब करता हूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, चेक दिस आउट. ये ब्लू कलर जो आ गया है, ये आपको राइट साइड में ले गया, और मैं इसका कलर फिर चेंज कर रहा हूं लाइक दिस.
और फिर मैं ले रहा हूं y greater than or equal to 0 and I graph it and I change this color to say green। और अब अगर आप ध्यान से देखें चारों का कॉमन कहां दिख रहा है, होवर ओवर जो मैं कर रहा हूं उससे प्लीज आइडेंटिफाई करके बताइए। कर रहा है कोई? ये सही तो फर्स्ट सेंटर क्वाड्रेंट। वाला। यस, चेक आउट दिस। जो ये बना है ना मेरा एक तरह से क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनकर आ गया है, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर पर सिर्फ इतना शेडिंग दिखाना है। आप चेक करिए, मैं इसको क्रॉप करके ले आता हूं अपनी स्क्रीन पर यहां पर। सो ये इसका ग्राफ बनकर आ गया, राइट। बट एग्जाम में आपको इतना मैसिव बताया ना, नहीं करना है। आपको क्या दिखाना है, यू जस्ट नीड दी फाइनल जो इसका रहा है, एंड दैट इज से ये वाला रीजन था। तो आपको सिर्फ लाइटर पेंसिल से थोड़ा ऐसे करके इतने को शेडिंग करके दिखाना है, दैट्स इट। तो बाकी शेडिंग नहीं रिक्वायर्ड है। तो ग्राफ पेपर का में भी मुझे यूटिलिटी कैसे करनी है, आप इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पहले से मालूम था सॉल्यूशन आने वाला है, तो यू कैन ऑलवेज हैव द ग्राफ पेपर और उस पे मैक्सिमम स्पेसिंग आप इस तरह से दिखाइए, गिव वेटेज टू दी फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। बट ये डिपेंड करता है, अगर आपको ये कंडीशन दी है, इनइक्वालिटी सी एंड इनइक्वालिटी डी। Okay, so this is a very simple question. I am not taking this now. Let me delete this answer from here and check this out everyone। एक ये वाला क्वेश्चन आप प्लीज करके बताइए। अब मैं 2 मिनट वेट करूंगा। आपके स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन। 3x plus 4y less than or equal to 60, x plus 3y less than or equal to 40। एंड एट द सेम टाइम आई एम श्योर आपने ये तो नोट कर लिया होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पता है सॉल्यूशन तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो उस तरह से ही ग्राफ के ऊपर आप उसको स्पेस देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को। If you can share your solution on the WhatsApp, I would be happy to see your graph। चाहे रफ भी बना रहे हैं, अगर ग्राफ पेपर नहीं भी है, दैट इज ओके। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेज सकते हैं। So I'm waiting।
Yes, I'm still waiting if any one of you can send the solution. If you are working, कोई कर रहा है या मैं आगे बढ़ूं? इतना सा मुझे पता हो. Should I wait? Okay, so there is no response from your side. यहाँ भी कोई नहीं बोल रहा है. WhatsApp पे भी कुछ नहीं आया है. So चलो. Okay, I think I received one answer. Okay, चलो चेक करता हूँ मैं एक बार WhatsApp पे. So Ashita has sent one solution. Okay, so let's check this out whether this is right or wrong. Okay, I have got another response also. Okay, this is Ananya. Okay, it seems to be the similar solution. ये मुझे बाद में पता चला कि ये अनन्या के नाम के साथ ये क्यों आ रहा है. वो मेरी डॉटर ने इसका नाम ऐसे सेव करा हुआ है. एंड बोथ आर दी फ्रेंड्स. मुझे नहीं पता था कि ऐसे क्या दिखता है ये इसमें. ओके सो एवरीवन प्लीज चेक दिस आउट. दो अगर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं तो आई एम श्योर कि सही रहा होगा. और 5, 10, 15 का गैप लिया है. परफेक्ट. दोनों का ही सॉल्यूशन बिल्कुल सही है. दैट्स गुड. और किसी ने भी करा है सॉल्व. आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा साथ साथ. ओके सो द आई एम श्योर द बेसिक आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक ये वाला भी क्वेश्चन करके देखिए. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली. इसीलिए आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 15 सभी करके देखिए. अगेन आई एम वेटिंग एंड आई विश के अब कुछ एक दो एक्स्ट्रा और अलग स्टूडेंट से भी रिस्पॉन्स आ जाए. आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए. x plus 2y less than or equal to 10, x plus y greater than or equal to 1, x minus y less than or equal to 0, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. तो x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 का तो सिंपल मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है. Yes. So please check this out. Good morning to all of you. This is best of luck for the physics exam. Now the exam will start, you will start getting question paper.
आई एम श्योर फ्यू ऑफ यू आर एक्चुअली वर्किंग विद मी, तो आप करिए। मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी को सिर्फ देख रहा हूं अभी, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। So those who are working, they must have ensured the shading would be downward. The next line is x plus y greater than or equal to 1. तो सेकेंड लाइन ये शेड होकर आ गया, तो अब थोड़ा सा मुझे देखिए ग्राफ ऐसे लेकर आना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ ये शेडिंग आ रहा है। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड सेकेंड इनइक्वालिटी आर ग्राफ्ड। थर्ड इनइक्वालिटी को बहुत ध्यान से सोचकर, क्योंकि यहां सिर्फ क्या मेन ध्यान देना है, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। तो दिस लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो अकॉर्डिंगली इसका शेडिंग ऊपर है या नीचे है वो आपको ध्यान रखना है। तो जीवेश का आंसर आ चुका है। लेट मी चेक दैट आंसर। ओके, सो कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताया है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस और फिर देखते हैं सही है या गलत है। या सो एनीवे हम यहां पर थे। ओके, अनदर आंसर इज विद मी बाय आतिफ। ओके, ये भी मैं पेस्ट कर देता हूं। सो सीम्स टू बी सेम, दोनों का सेम लग रहा है। वो एक आइडिया लग रहा है कि फिर सही रहा होगा। सो एटलीस्ट आई कैन नाउ वेरीफाई यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। और साथ में ओके चलो आशिता का भी आंसर आ गया है। एक वो और मैं चलो देख लेता हूं आशिता। ओके चलो, so I have number of responses here. So every response clearly justifies कि बिल्कुल ठीक रहा है। ठीक है, अभी नीटनेस नहीं है क्योंकि आपने ग्राफ पे प्रॉपर नहीं करा, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, सो अब लास्ट इनइक्वालिटीज रह गई हैं। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y greater than or equal to 0. I just change their colors. तो एक ये ले लेता हूं और नेक्स्ट कलर चलिए येलो पिक कर लेता हूं। ओके, सो अब अगर हम चेक करें हमारा, ओके आलोकनाथ का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, वही सेम सॉल्यूशन आ रहा है आलोक आपका भी, चलो दैट्स ग्रेट। तो अगर अब आप यहां से चेक करें इनइक्वालिटी सारी कवर हुई या नहीं। इनइक्वालिटी ABCDE है, तो कहाँ मुझे कॉमन दिख रहा है जो आपने लॉजिकली सोचा भी होगा, एंड इट इज लाइंग हेयर। So quickly let me take this to my presentation। और यहां देखकर आपको क्लियर आइडिया लग रहा है
कि जो शेडिंग मेरा रहा है वो फाइनली सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन में आ गया था, दिस वन, ये वाला. सो एज एवरीवन हैज ऑलरेडी ड्रॉन. ओके. In fact, these are all questions for your homework. So ये NCERT एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉफ्टवेयर से सॉल्व करके यहाँ रखे हुए हैं, followed by these all questions. But homework जो है, do it on the graph paper only. You can buy one पतली वाली जो ग्राफ बुकलेट आती है, ग्राफ कॉपी की वैसे, और उसमें सारी एक्सरसाइज को कर लीजिए. और फिजिकली याद रखिए, आपको रजिस्टर सबमिट करने हैं तो आप उसमें ग्राफ पेपर को कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं, और बुक जो अपना या ग्राफ की कॉपी है वो अलग से सबमिट कर दिया. बट आई वुड रिकमेंड रजिस्टर में ही आप ग्राफ पेपर को कट करके पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. सो ये तो बुक के ही क्वेश्चन हैं, एंड फॉलोड बाय दीज क्वेश्चंस. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन. These are from the assignment which you will be getting. तो ये वाले आपके 6 क्वेश्चंस स्पेसिफिकली आपको करने हैं. ये तो करने ही एनसीईआरटी के आप कर लेंगे. और 14th है, इसमें क्या ध्यान देने की जरूरत है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखो राइट साइड में 150, 80. तो यहाँ गैप जो है वो 1, 2, 3, 4 से नहीं काम चलेगा. 10, 20, 30, 40 या फिर इवन हो सकता है 20, 40, 60, 80 इस तरह का आपको लेना रहे, तो वो आपको ध्यान रखना है. सो ये वाले क्वेश्चंस भी आपके ग्राफ पेपर पे आपको होमवर्क में करने हैं. Yes. There are, okay, graphical solution is over. Now, as far as our syllabus is concerned, उसमें हमने इतना ही लिया है. But those who are preparing for say any of the competitive exam, वहां पर ये चीज एक्स्ट्रा आती है. तो आपके पास जो ये 4 फॉर्मूलाज बताए हैं, some useful results, please highlight them और इन्हें याद कर लीजिए. mod x less than a, mod x लेस देन a का सॉल्यूशन होता है माइनस a लेस देन x लेस देन a, और mod x लेस देन और इक्वल टू a हो तो इक्वालिटी आ जाती है यहाँ पर. मॉडुलस का मतलब सभी को पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है, नेगेटिव चेंजिंग इनटू पॉजिटिव. इवन अगर आप कंपेयर करो फर्स्ट वाले को यहाँ के फर्स्ट वाले से, जो मैंने लिखा है, यहाँ मॉड का साइन नहीं है, बट क्या इनइक्वालिटी है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर. लुक एट द राइट हैंड साइड टॉप, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर. इसका सॉल्यूशन ये रहा, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए. और ऐसे ये सेकंड इनइक्वालिटी और ये सेकंड इनइक्वालिटी को कंपेयर कर लीजिए, दोनों के सॉल्यूशन सेम है. इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ, तो ये इनइक्वालिटी हो या ये इनइक्वालिटी हो, दोनों का आंसर सेम होता है ये. तो ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, और इनके एग्जाम्पल पढ़ के देख लीजिए. जस्टिफाई एक एक मैंने पार्ट लिया था, चारों का ऑर्डर में ही है. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, बट एग्जाम में स्कूल लेवल पे हम नहीं ले रहे हैं. एंड दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड दिस मोर, देयर आर द क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई आउट दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क, और सॉल्यूशन बाद में आप पढ़ लेना. सो सेम वे सॉल्यूशन एंड ऑन दी नंबर लाइन. सो फाइनली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में, बट एज पर द डिलीटेड करिकुलम they are not in the syllabus, right? So not in syllabus. ठीक है. तो अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स का अगेन रियल लाइफ की हम बात कर रहे हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे यूज होती हैं, बट स्टिल क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं. बट दोज हु आर इंटरेस्टेड, बेसिक एक एक लाइन का हिंट दिया है, आप इतना भी अगर ये पढ़कर देखेंगे,
you will definitely able to understand the applications of linear inequalities. So with this, we end with the topic linear inequalities. Please mark your attendance once again and then you can leave the class. Thank you very much. Have a good day. नेक्स्ट मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है. प्रोबेबली इट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट आई नीड टू चेक. सो जो मैंने एक ऑर्डर आपको बताया है उसी में मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं. चलो, थैंक यू वेरी मच. कंप्लीट दिस वर्क इन योर होमवर्क इन अ रजिस्टर. थैंक यू. यू कैन लीव द क्लास. Sir, have a good day, sir. Yeah, thank you. Good day.